آداب زندگی۔ آداب خانہ داری، سفر کے احکام، لباس کے آداب اور بھی دیگر آداب جاننے کے لیے دیکھیے تہذیب الاسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر تہذیب الاسلام کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ جلسے اور محفلیں جن میں جانا روا ہے اور وہ لوگ جن کے پاس بیٹھنا اٹھنا مناسب ہے، اس چیز کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ اس شخص کی پیروی کرو جو تم کو رلا دے مگر تمہارا خیر خواہ ہو، اور اس شخص کے کہنے پر مت چلو جو تم کو ہنساتا ہو مگر فریب دینا چاہتا ہو۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ پہلے سمجھ لو کہ تم کس سے باتیں کرتے ہو اور کس کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہو، کیونکہ ہر شخص کو موت کے وقت اس کے ہمنشین دکھلائے جاتے ہیں۔ اگر ان کا چال چلن اچھا ہوتا ہے اور وہ نیک ہوتے ہیں تو اسے خوشی ہوتی ہے، اور اگر ان کا چال چلن بد ہوتا ہے تو اسے رنج ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے بھائیوں میں سب سے بہتر اسے جانتا ہوں جو میرے عیب مجھ پر ظاہر کر دے۔ یہ بھی فرمایا کہ پرانے دوستوں کی محبت لازم سمجھو اور نئے دوستوں کی صحبت سے ڈرتے رہو، کیونکہ وہ اپنے عہد کو وفاداری سے نہیں نبھاتے، اور تمام آدمیوں سے خواہ تمہارا کسی پر کتنا ہی اعتبار ہو بدگمان ضرور رہو۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے وفات کے وقت یہ وصیت فرمائی کہ ان مقامات سے جہاں تہمت لگنے کا اندیشہ ہو اور ان صحبتوں سے جن کی نسبت لوگ بدگمانیاں کرتے ہوں بہت اجتناب کرو، کیونکہ بد ہمنشین اپنے دوست کو فریب دیتا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص بدکاروں کے پاس بیٹھتا ہو وہ تہمت کا زیادہ سزاوار ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص مقامات تہمت میں ہو اور لوگ اس کی نسبت بدگمانی کریں تو اسے اپنے آپ کو ملامت کرنی چاہیے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ شک اور تہمت کے موقعوں سے بچو۔ مناسب نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بھی راستے میں کھڑا ہو، کیونکہ سب راہگیر یہ نہیں جانتے کہ یہ اس کی ماں ہے۔ معتبر حدیث میں منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بد مصاحبت اخلاق میں سرایت کر جاتی ہے اور بد ہمنشین موجب ہلاکت ہوتا ہے، اس لیے تم غور کر لو کہ تمہارے ہمنشین کیسے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ نیک لوگوں کی دوستی موجب ثواب ہے، اور نیک لوگوں کے ساتھ برے لوگوں کی دوستی نیک لوگوں کے لیے باعث فضیلت ہے، اور نیک لوگوں کے ساتھ بدوں کی دشمنی نیک لوگوں کی زینت ہے، اور بد لوگوں کے ساتھ نیکوں کی دشمنی بدوں کے لیے موجب خاری ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ 5 قسم کے آدمیوں کے ساتھ ہرگز مصاحبت و رفاقت نہیں کرنی چاہیے۔ اول، جھوٹے کے ساتھ کہ اس کی مثال شراب جیسی ہے کہ وہ اپنے جھوٹ سے ہمیشہ تمہیں دھوکہ دے گا اور اکثر بعید کو قریب دکھلائے گا اور قریب کو بعید۔ دوسرے، فاسق کے ساتھ کہ وہ تم کو ایک خوراک کھانے یا اس سے بھی کم کے عوض میں دوسروں کے ہاتھ بیچ دے گا۔ تیسرے، بخیل کے ساتھ کہ وہ سخت سے سخت ضرورت میں بھی اپنے مال سے تمہاری امداد نہ کرے گا۔ چوتھے، احمق کے ساتھ کہ اگر وہ تمہیں نفع بھی پہنچانا چاہے گا تو الٹا نقصان ہی پہنچائے گا۔ پانچویں، اس شخص کے ساتھ جو قاطع رحم ہو، کیونکہ خدا تعالیٰ نے ایسے شخص پر قرآن مجید میں 3 جگہ لعنت فرمائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے زیبا نہیں ہے کہ کسی بدکار یا احمق یا جھوٹے کو اپنا بھائی یا دوست بنائے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کی آدمیوں کی ہمنشینی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ اول، کمینے یا ادنا درجے کے لوگ، دوسرے عورتیں، تیسرے امراء۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ اپنے دوستوں سے زیادہ میل جول مت کرو کہ وہ میل جول آخر باعث جدائی ہو جاتا ہے، اور ان سے الگ بھی مت رہو کہ موجب ذلت ہے۔ نیکی اس شخص کے ساتھ کرو جو اس کا خواہاں ہو، اور جس طرح سے بھیڑیے بکری میں دوستی نہیں ہے اسی طرح نیکوں اور بدوں میں دوستی نہیں ہو سکتی، اور جو شخص رال کے پاس جائے گا وہ ضرور اس کو سمٹ جائے گی۔
उसी तरह जो शख्स बदकारों की सोहबत में बैठेगा उनकी बदियां ज़रूर सीखेगा। जो शख्स लोगों से लड़ेगा गालियां ज़रूर सुनेगा। जो शख्स किसी बुरी महफिल में बैठेगा उसे तोहमत ज़रूर लगाई जाएगी। जो शख्स बद हमनशीन के पास बैठेगा वो हरगिज़ बदी से महफूज न रहेगा। और जो शख्स अपनी ज़बान की निगहदाश्त न करेगा वो हमेशा पशेमान होगा। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि बिदअती लोगों की मुसाहिब और हमनशीनी से गुरेज़ करो वरना लोग तुमको भी वैसा ही समझेंगे। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आदमी अपने दोस्त और मुसाहिब के दीन पर होता है। नीज़ फरमाया कि अहमक से दोस्ती मत करो कि जिस वक्त तुम उससे ज़्यादा खुश होगे करीब है कि उसी वक्त वो तुम्हें रंजीदा कर दे। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है कि सबसे दाना वो शख्स है जो जाहिलों की सोहबत से भागे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि जो शख्स किसी बरादर मोमिन को कोई बुरा काम करते देखे और उसका रोकना भी उसके अख्तियार में हो और फिर न रोके तो उसने दोस्ती और बरादरी में ख़यानत की। और जो शख्स अहमक की मुसाहिबत से परहेज़ ना करे उसमें बहुत जल्द उसके अखलाक में सिरायत कर जाएंगे। हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे मुसाहिबों में सबसे बदतर वो है जो गुनाह की बातों को तुम्हारी नज़र में अच्छा कर दिखाए। ये भी फरमाया कि बदों की हमनशीनी से नेकों के बारे में बदगुमानी पैदा होती है। सही हदीस में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि जिस शख्स की मुसाहिबत से तुम्हें दीनी नफ़ा न पहुँचे उसकी हालत की तरफ तवज्जो और उसकी सोहबत की रग़बत मत करो। दूसरी हदीस में फरमाया कि 4 चीज़ें बिल्कुल ज़ाय होती हैं। अव्वल बेवफा से मोहब्बत करना, दूसरे ऐसे शख्स के साथ नेकी करना जो एहसान न माने, तीसरे ऐसे शख्स को इल्म सिखाना जो तवज्जो न करे, चौथे राज ऐसे शख्स से कह देना जो उसकी हिफाजत न करे। हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि आलिम की सोहबत में कूड़े पर बैठना जाहिल की सोहबत में आला दर्जे के फ़र्श पर बैठने से बेहतर है। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है कि हवारियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ की कि हम किन लोगों की हमनशीनी अख्तियार करें। फरमाया ऐसे लोगों की जिनके देखने से तुम्हें खुदा याद आए, जिनकी बातों से तुम्हारा इल्म बढ़े और जिनके अफ़आल से उक़बा की तरफ तुम्हारा मीलान ज़्यादा हो। दूसरी हदीस में फरमाया कि दीदारों के पास बैठना दुनिया व आखिरत दोनों जहां की बुजुर्गी है। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स पर मुझे भरोसा हो उसके पास एक दफ़ा बैठना मेरे नज़दीक 1 साल की इबादत से बेहतर है। दूसरी हदीस में फरमाया कि अमीरों के पास मत बैठो क्योंकि जब कोई बंदा खुदा उनके पास अव्वल जाकर बैठता है गोया वो ये जानता हो कि खुदा ने मुझे बहुत सी नेमतें दे रखी हैं मगर अभी वहाँ से उठने नहीं पाता कि ये गुमान पैदा हो जाता है कि खुदा ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है कि 4 चीज़ें दिल को मुर्दा कर देती हैं। अव्वल गुनाह पर गुनाह करना, दूसरे औरतों के साथ ज़्यादा बातें करना, तीसरे अहमकों से झगड़ना कि तुम एक बात कहो और वो दूसरी कहे और हक़ को न माने, चौथे मुर्दों के साथ हमनशीनी करना। लोगों ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मुर्दे कौन? फरमाया वो उमरा जो खुदा को भूल गए हों। मनक़ूल है कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अपनी औलाद से फरमाया करते थे कि दीदार और खुदा शनास लोगों की सोहबत में बैठो और अगर ऐसे लोग मुयस्सर न हो तो औरों की सोहबत से तन्हाई बेहतर और मूजिब सलामती है और अगर 4 व नाचार उन लोगों की सोहबत में बैठना ही पड़े तो बामुरव्वत लोगों के पास बैठो कि वो अपने जलसों में फहश नहीं बकते। हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि आदमी को अपने बाप के मुसाहिबों की इज़्ज़त व हिफाजत करना लाजिम व मुनासिब है क्योंकि उनके साथ नेकी करना ऐसा ही है जैसे अपने बाप के साथ नेकी करना। दूसरी हदीस में फरमाया कि हज़रत लुक़मान अपने बेटे से फरमाया करते थे कि जिन सोहबतों में तुम बैठना चाहो पहले बेनज़र बसीरत उनको देखो, अगर उनमें कोई गिरोह खुदा का याद करने वाला है तो तुम उनके पास बैठो क्योंकि बसूरत तुम्हारे आलिम होने के तुम्हारे इल्म से उन्हें नफ़ा पहुँचेगा और उनके पास तुम्हारे बैठने से उनका इल्म बढ़ जाएगा और बसूरत जाहिल होने के तुम्हें उनसे हासिल होगा और मुमकिन है कि खुदा उन पर रहमत नाजिल करे और तुम भी उसमें शरीक हो। और अगर उनमें से कोई ऐसा गिरोह है जो खुदा को याद नहीं करता उनके पास मत फटको
क्योंकि बसूरत तुम्हारे आलिम होने के उन्हें तुम्हारे इल्म से कुछ नफ़ा न होगा, और बसूरत जाहिल होने के तुम्हारी जहालत और बढ़ जाएगी, और मुमकिन है कि खुदा उन पर कोई अजाब नाजिल करे और तुमको भी उसमें शरीक करे। हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि उस गुरोह में जहाँ खुदा ताला को याद करते हों जाना लाजिम है। दूसरी हदीस में फरमाया कि ज़माने के दाना ये कह गए हैं कि अपने घर से दूसरे के घर जाने के लिए इन 10 असबाब में से कोई एक सबब होना चाहिए। अव्वल हज वगैरह अदा करने के लिए खुदा के घर जाना, दूसरे दीनी बादशाहों के घर जाना कि उनकी इताअत खुदा के इताअत से मिली हुई है, उनका हक़ वाजिब है, उनकी इताअत का नफ़ा बहुत बड़ा है और उनकी मुखालफत का ज़रर बहुत सख्त है। तीसरे दीनी व दुनियावी उलूम हासिल करने के लिए उलमा के घर जाना। चौथे साहिबान जूद व बख्शिश के घर जाना जो अपना माल सवाब आखिरत की उम्मीद में खर्च करते हों। पाँचवें उन अहमकों के घर जाना जिनके बेसबब हादसात ज़माना लोग मुहताज हो जाते हैं और अपनी हाजतें उनके पास ले जाते हैं। छठे हुसूल इज़्ज़त व रफ़ हाजत के लिए बड़े आदमियों के घर जाना। सातवें मामलात में मशवरा करने के लिए उन लोगों के पास जाना जिनकी राय पर लोगों को भरोसा हो और जिनकी मतानत व इस्तिक़लाल से लोगों को नफ़ा की उम्मीद हो। आठवें बरादरान ईमानी के घर इस एवज़ से जाना कि उनसे मिलना जुलना वाजिब और उनका हक़ लाजिम है। नवें दुश्मनों के घर इसलिए जाना कि मेल जोल से उनका ज़रर दूर हो और मुदारात से उनकी अदावत जाती रहे। 10वें ऐसी सोहबत में जाना जहाँ की मुलाकात से आदाब मजलिस हासिल हो, इखलाक दुरुस्त हो और उनसे बातें करने से उन्स पैदा हो। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़। सिदरतुल मुंतहा।